میری خواہش ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ بڑی بڑی فتح حاصل کرنے والا بڑا بادشاہ بھی ہو۔ زمیں پر جتنے ملک ہیں انہیں اکثر بے تہذیب اور جاہل اپنا محکوم بنا لیا کرتے ہیں، اور بڑی بڑی فتحیں بھی چند سالوں میں چور چور ہو جایا کرتی ہیں۔ سچا اور عظیم بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کا پہلا وصول ہو اپنی تمام رعایا کو ایک نظر سے دیکھنا۔ یہ خط حال میں ہی تخت سے بے دخل کیے گئے شاہجہاں کو ان کے بیٹے اورنگزیب نے لکھا تھا، جو کہ اب دنیا کی سب سے رئیس سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ اورنگزیب کو دنیا کی سب سے مالدار اور طاقتور حکومت حاصل ہوئی تھی۔ ان کے والد شاہجہاں کی حکومت کے دنوں میں سلطنت کی مالگزاری میں کافی اضافہ ہوا تھا۔ شاہجہاں کو خاص طور پر ان کے عمارتی کاموں اور منصوبوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ آگرے کے تاج محل اور شاہجہان آباد یعنی دلی کی تعمیر کے لیے انہوں نے ہی رقم دی تھی، جبکہ اورنگزیب کا خاص زور حکومت کی سرحدوں کو پھیلانے پر ہی رہا۔ حکومت کے آخر تک اورنگزیب بغاوتوں کو کچلنے اور سرحدوں کو پھیلانے کے لیے بے رحم جنگ لڑنے اور سنگ دل محاصروں کی نگرانی کرنے میں ہی مصروف رہے۔ مغل طاقت کو مضبوط بنانے اور سرحدوں کو پھیلاؤ دینے کے لیے جب وہ سیاسی داؤں پیچوں کا استعمال کرتے تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان کی بادشاہت کا آدھا وقت خاص طور پر اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے ہی گزرا۔ حالانکہ کچھ ایسے موقع بھی آئے جب مغلیہ حکومت کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی فوج کے قدم واپس کھینچنے میں بھی نہیں ہچکے۔ مثلاً 1660 میں انہوں نے مراٹھا سردار شیواجی کو پھسلا کر مغل حکومت کے اوپر منڈرا رہے مراٹھا نام کا خطرہ دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سیدھی انگلی سے بات نہ بنی تو انہوں نے انگلی ٹیڑھی کرنے میں بھی دیر نہیں کی اور مراٹھوں کے خلاف مار کاٹ اور جنگ کا رخ اختیار کر لیا۔ یہ جنگ تا عمر چلی اور اس میں انہیں بڑی سیمت سی ہی کامیابی حاصل ہو سکی۔ اورنگزیب نے ان کو بھی نہیں بخشا جو شیواجی کو مغلوں کی قید سے بھگانے میں مدد کرنے والوں میں شامل تھے۔ بنارس اور متھرا کے مندروں کو تباہ کرنے کے پیچھے ان کا یہی مقصد تھا۔ حکومت کے شروعاتی دور میں انہوں نے مغل سلطنت پر منڈراتے سینکڑوں خطروں کا سامنا کیا اور کسی پر بھی رحم نہیں دکھایا۔ مثلاً 1675 میں انہوں نے مغل حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے عوض میں سکھ گرو تیغ بہادر کے لیے موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اسی طرح 1670 میں جب راٹھور اور سسودیہ راجپوتوں نے بغاوت کی تو اورنگزیب نے فوج کا استعمال کرتے ہوئے ان بغاوتوں کو کچل دیا۔ آج اورنگزیب عالمگیر کو ایک قاتل بے رحم بادشاہ اور خلنائک کے روپ میں دکھایا جاتا ہے، لیکن سچ آپ کو پورا نہیں بتایا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے بے شک ان لوگوں کو مروایا تھا، وہ اس لیے کیونکہ ان سبھی لوگوں نے مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے رہے ہوں، اورنگزیب نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، یہاں تک کہ حکومت کے خلاف سانٹھ گانٹھ یا صلح سمجھوتا کرنے والے شاہی خاندان کے لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ ان سے نپٹنے کے لیے بھی انہوں نے اتنا ہی سخت رویہ اپنایا۔ مثال کے طور پر 1681 میں جب ان کے اپنے ہی بیٹے شہزادہ اکبر نے بغاوت کی تب اورنگزیب نے دکن تک اس کا پیچھا کیا اور جلد ہی اسے ایران کی اور کھدیڑ دیا۔ والد کے غصے سے بچنے کے لیے شہزادہ اکبر 1704 میں موت کی راہ پر بڑھ گیا۔ دکن کو شاہی سرحدوں میں شامل کرنے کے ارادے سے اورنگزیب سموچے دربار سمیت دکن چلے گئے۔ دکن کو قابو کرنے کی کوششیں ان سے پہلے دوسرے مغلوں نے بھی کی تھیں۔ یہ کوششیں اورنگزیب کے پردادا اکبر کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں۔ کچھ بادشاہوں نے دکن پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اورنگزیب پہلے اور آخری مغل بادشاہ تھے جنہیں سموچے دکن بھر میں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ 1680 میں انہوں نے بیجاپور اور گولکنڈہ کو گھیر کر دونوں سلطانوں کو جھکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ 1690 اور 1700 کے دوران انہوں نے ساؤتھ کے سینکڑوں سدور پہاڑی علاقوں کو مراٹھوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا۔
फिर भी मराठे लगातार मुगलों को नाकाम करने की कोशिशें करते रहे। 1707 यानी औरंगजेब के इंतकाल तक मुगल सल्तनत की आबादी अपने समकालीन यूरोप की तुलना में दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी थी और पहले के बादशाहों की तुलना में मुगलों के कब्जे में अब तक कहीं ज़्यादा ज़मीनें आ चुकी थीं। जंग के लिए औरंगजेब का जो जुनून था वह अपने पुरखों से अलग किस्म का था। हालांकि उनकी शदीद ख्वाहिशों को गौरतलब कामयाबी भी मिली, लेकिन मौका पाते ही सरहदों को फैलाते जाने और उनके साथ हुकूमत में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी औरंगजेब के कंधों पर बोझ की तरह लद गई थी। इस दोहरे दबाव ने ही औरंगजेब के जंगी इरादों को आकार दिया था। लेकिन मुगल हुकूमत के तख्त पर काबिज होने का मतलब लगातार खून बहाते रहना और नक्शे की लकीरों को लगातार लंबा और लंबा खींचते चले जाना ही नहीं था। औरंगजेब के भीतर दुनियावी ताकतों के लिए जो प्यास थी, उसके अलावा एक और चीज़ की ख्वाहिश उनके मन में बनी रही, अदल यानी इंसाफ परस्ती की। कई बार औरंगजेब यह दावा करते हैं कि एक इंसाफ परस्त और इखलाक पसंद बादशाह होने के नाते वह तमाम ताकतों से ऊपर हैं। एक बार तख्त से उखाड़ फेंके गए शाहजहां ने औरंगजेब पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने दक्कन और बंगाल में बेअसर तरीके से फौजी टुकड़ियों को तैनात किया है। तब औरंगजेब ने जवाब में कहा कि ज़रूरी नहीं जो जीतने में माहिर हो वो हुकूमत का इंतज़ाम संभालने में भी माहिर हो, यानी उनमें से एक हो जो महज रख रखाव के लिए ही जिया करते हैं। बहुत से कंटेम्प्रोरी सोर्सेज औरंगजेब की इंसाफ परस्ती के दावे को सही ठहराते हैं। मसलन इटालियन ट्रैवलर निकोलाओ मानुची, जिसे औरंगजेब में कोई खास दिलचस्पी ना थी, उसने लिखा है कि इस बादशाह का मिजाज बड़ा ही तंगहाल था। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ में मशगूल रहा करता था। उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो इंसाफ दे और एकदम दुरुस्त फैसला सुनाए। 1663 में ईश्वर प्रसाद नाम के एक ज्योतिषी ने औरंगजेब के बारे में संस्कृत में लिखा कि राजा धर्मया है यानी न्यायी है। साथ ही यह भी लिखा कि उसकी ऋण संबंधी नीतियां विधिवत हैं। औरंगजेब के इक़्तिदार का फ़लसफ़ा इंसाफ के प्रति उनके जिद के साथ गुथा हुआ था, जिस पर असरदार सियासी दांव पेंचों की अच्छी खासी खुराक और ताकत की न बुझने वाली प्यास भी बुरकी हुई थी। इस तरह अगर हम औरंगजेब और उनकी हुकूमत के बारे में कुछ भी जानना चाहें, मसलन हिंदुस्तान की हुकूमत हासिल करने के लिए अपने ही भाइयों को कुचल डालने से लेकर हिंदू मंदिरों के प्रति उनके रवैयों तक, तो सबसे पहले हमें अपने इस नज़रिए को फिर से गढ़ना होगा कि उनका नज़रिया क्या था। मतलब यह कि उनकी तमन्ना एक इंसाफ परस्त और असरदार बादशाह बनने की थी। वे वाक़े ख़ास तौर पर अहम हैं जिसमें औरंगज़ेब इखलाक और इंसाफ के अपने उसूलों के खिलाफ जाते दिखाई देते हैं, जैसे कि वालिद को हुकूमत से उखाड़ फेंकना या दक्कन में इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ जंग लड़ना। औरंगज़ेब अक्सर कोरी सियासत के बुनियाद पर खड़े अपने कामों को देखकर बेचैन हो जाते थे। उनकी यही बेचैनी इंसाफ परस्ती के प्रति उनके कौलो करार की हद और गहराई दोनों की ओर इशारा करती है। औरंगज़ेब को हुकूमत के अलावा एक शानदार अतीत भी हासिल हुआ था। अपने ख़तों में उन्होंने अपने कुछ खास पुरखों के नाम के साथ अजीम जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। मसलन ज़िंदगी के आखिरी बरसों में उन्होंने अपने एक पोते को सलाह देते हुए लिखा कि मुग़ल सल्तनत तैमूर और अकबर अज़ीम का दिया हुआ एक तोहफ़ा है, जिसकी शान को उठाए रखने की भारी जिम्मेदारी आने वाली नस्लों के कंधों पर हैं। औरंगज़ेब को अपने पुरखों से तहज़ीब और रिवायतों का एक लंबा चौड़ा और मुख्तलिफ रंगों का खजाना मिला था। मुग़ल बादशाहों ने दसियों साल खर्च करके शानदार इमारतें बनवाई थीं, कवियों, शायरों और इल्म पसंद लोगों को संरक्षण दिया था, हाथ से लिखी किताबों के लिए शानदार कुतुब खानों का बंदोबस्त किया था, बड़ी ही तफसील से दरबार के कायदे तय किए थे, चित्रकारों और दूसरे फनकारों व इल्म पसंद लोगों के लिए इमदाद दी थीं। औरंगज़ेब ने कला, इल्म और इमारत से जुड़ी इन दिलचस्पियों में से कुछ में बदलाव किए और बाकी को खारिज कर दिया। औरंगज़ेब इन मुग़ल रिवायतों से कभी रिश्ता ना तोड़ सके, मगर उन्होंने इन रस्मों को अपनी सोच के मुताबिक नई तरह से ढाला।
शुरुआत में औरंगजेब की तहजीबी और दरबारी सरगर्मियां शाहजहां और दूसरे शुरुआती मुगल बादशाहों के नक्श कदम पर चलीं। मिसाल के तौर पर बादशाह बनने के शुरुआती सालों में औरंगजेब ने अपनी पहली बीवी दिलरास बानो बेगम, जिनका इंतकाल 5वीं औलाद की पैदाइश के वक्त 1657 में हुआ था, उनकी याद में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया। ये चमचमाता सफ़ेद मकबरा, जो बीबी के मकबरे के नाम से मशहूर है, वह शाहजहां के ताजमहल की ही नकल है, पर आकार में आधा है और संगमरमर की जगह संगमरमर के प्लास्टर से बना हुआ है। अब मजाक में लोग इसे गरीब का ताजमहल कहते हैं, लेकिन मजाक का ये अंदाज एक सादा और सुंदर मकबरे के जरिए अपनी बीवी की यादों को महफूज रखने के औरंगजेब के एहसास के साथ इंसाफ नहीं करता। मुगल हुकूमत के तख्त पर काबिज होने के शुरुआती 10 सालों में औरंगजेब उन मुगल रिवाजों के हामी थे जो हिंदू रीतियों से लिए गए थे। बादशाह हर रोज महल के झरोके से अपनी रियाया को दर्शन दिया करते थे, माने अवाम को अपनी मुबारक सूरत की झलक दिखाते थे। सौर और चंद्र पंचांग के मुताबिक पड़ने वाली अपनी पैदाइश की सालगिरह पर वह सार्वजनिक रूप से अपने वजन के बराबर सोना और चांदी खैरात करते थे। यह एक हिंदू परंपरा थी जिसे अकबर के ज़माने में अपनाया गया था। औरंगजेब हिंदू धर्मगुरुओं के संपर्क में रहते थे। मसलन उन्होंने महंत आनंदनाथ को खत लिखकर अपनी बीमारी के लिए नुस्खा सुझाने की इल्तिजा की थी। 1661 में पंजाब में उन्होंने इस योगी की ज़मीनों में भी इजाफा किया था। देखा जाए तो उनके ये ताल्लुकात उनके पुरखे जहांगीर और हिंदू योगी जदरुक की मुलाकातों और अकबर द्वारा मथुरा के वैष्णवों को ज़मीनें दिए जाने के सरीखे ही हैं। सालों तक औरंगजेब जिंदगी के लुत्फ और खुशी के लिए भी वही सब करते रहे जो उनके पुरखे करते आए थे। गर्मियों का मौसम वह दिल्लगी के लिए मुगलों की पसंदीदा जगह कश्मीर में बिताते थे। बख्तवर खान, जो कि इस दौर का कम जाना गया लेकिन बहुत ज़रूरी इतिहासकार है, उनके मुताबिक बादशाह औरंगजेब खुद मौसीकी के माहिर फनकार थे। 1666 में फ़कीरुल्लाह द्वारा लिखे संस्कृत ग्रंथ राग दर्पण में औरंगजेब के पसंदीदा मौसीकीकारों और वादकों के नाम दिए गए हैं। हुकूमत के दूसरे दशक में औरंगजेब ने अपना बादशाही रुतबा बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू परंपराओं से प्रेरित कुछ दरबारी रिवाज पीछे छोड़ दिए और कुछ चीज़ों से बादशाही सरपरस्ती का हाथ हटा लिया, जैसे कि संगीत। उन्होंने दरबारी इतिहासकार का ओहदा भी घटा दिया। इन बदलावों की वजह से उनके दरबार का माहौल बहुत ही रूखा और सख्त हो गया, मगर मुगल सल्तनत पर इसका असर कम ही पड़ा। 1668 तक उन्होंने एक दरबारी रोजनामचाकार मोहम्मद काजिम को सहारा दिया, जिससे उनकी पैठ मुगलों के कुतुबखानों और दरबारी दस्तावेजों तक हो गई। मुगल हमेशा से दरबार में इतिहासकारों की भर्ती नहीं करते आए थे। बाबर और जहांगीर ने अपनी यादें खुद ही लिखी थीं। हुमायूं के ज़माने का ज़्यादातर इतिहास उनके इंतकाल के बाद लिखा गया था, लेकिन औरंगज़ेब के लिए तमाम मुग़ल बादशाहों में से अकबर और शाहजहां दो ही ऐसी मिसालें थीं जिनके दरबार में तनख्वाह पर इतिहासकार रखे गए थे। इस मिसाल को कायम रखते हुए औरंगज़ेब ने मोहम्मद काजिम से आलमगीर नामा लिखवाया, जिसमें काजिम ने औरंगज़ेब की हुकूमत के 10 साल समेटे। इस किताब के हाथ में आ जाने के बाद औरंगज़ेब ने उन्हें दूसरे काम थमा दिए। यह बात अभी तक साफ नहीं है कि आखिर अपने दरबार का रोजनामचा लिखवाए जाने की ओर से औरंगज़ेब ने इस तरह से अपना दिल क्यों हटा लिया था। बहुत से विद्वानों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। उनका अंदाज़ा है कि उन्होंने बाहरी चीज़ों के बजाय भीतरी और गहरी चीज़ों की ओर अपना रुख मोड़ लिया था। उनके मुताबिक उनकी रूह इतनी पाक हो उठी थी कि उन्हें दीन के अलावा दूसरी तरह की किताबों पर रकम ज़ाया करना चोट करने जैसा लगने लगा था। लेकिन शाही दरबार में आगे जो वाक़ये पेश आए उनके मद्देनज़र ये बातें यकीन के परे लगती हैं। अगर ऐसी कोई बात रही होती तो औरंगज़ेब कभी भी दूसरे इतिहासकार नियुक्त नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने इतिहास लेखन पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई। 1660 की दहाई में औरंगज़ेब ने दरबार के प्रोटोकॉल में बहुत सी तब्दीलियां की। 1669 में उन्होंने झरोका दर्शन देना बंद कर दिया।
इसी वक्त के आसपास उन्होंने अपने जन्म की सालगिरह पर अपने वजन के बराबर सोने चांदी की खैरात भी बंद कर दी। उन्होंने दरबार की कुछ रस्मों से मौसीकीकारों को पीछे खींच लिया और उन्हें दूसरे किस्म के काम सौंप दिए। हैरत की बात यह है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाकर, हो सकता है इनमें से कुछ तब्दीलियां हुकूमत को बेहतर करने के लिए की गई हों। मिसाल के तौर पर झरोका दर्शन बंद करने के पीछे की वजह शाही मोर्चों में चल रही उठापटक या बेचैनी हो सकती है। 1657 में जब शाहजहां की तबीयत बिगड़ी तो झरोका दर्शन न दे पाने की वजह से ही उनकी बीमारी की खबर छिप न सकी थी। उस वक्त शाहजहां हालांकि महज 10 दिन बिस्तर पर थे, लेकिन मुगल शहजादों के दरमियान तख्त पर काबिज होने की जुगत के पहिए घुमा देने के लिए इतना वक्त ही काफ़ी था। लेकिन 10 सालों के दरमियान औरंगज़ेब ने जितनी भी तब्दीलियां या बदलाव किए, उन सभी को उनकी सियासी होशियारी या दूरंदेशी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मौसीकी के प्रति उनकी बेरुखी की वजह शायद यह हो सकती है कि उससे उन्हें कुछ फ़ायदा नज़र न आ रहा हो, जबकि यह महज उनकी निजी दिलचस्पियों या तरक्की का मसला रहा होगा। इसी तरह शायद ऐसा ही कुछ उन्होंने कीमती धातुओं से अपना वज़न तौलवाकर खैरात करने के बारे में भी महसूस किया होगा। 1690 में लिखी यूरोपीय यात्री जॉन ओविंगटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने अपने पोते बीदार बख्त से अपने वज़न के बराबर सोना चांदी वगैरह खैरात करने की रिवाज की तारीफ और सिफारिश की थी। बल्कि यह भी हो सकता है कि उन्होंने दोबारा इस रिवाज पर अमल शुरू कर दिया हो। औरंगज़ेब ने हालांकि मौसीकी के प्रति अपने पुराने जुनून को दोबारा हवा नहीं दी, लेकिन अपने एक खत में उन्होंने अपने बेटे को यह सलाह दी थी कि मौसीकी का लुत्फ़ लेना बाकायदा एक शाही शौक़ है। औरंगज़ेब के इन नए कायदों का असर यह हुआ कि उनके बेटे और मुग़ल अमीरों के निजी दरबारों में तमाम फ़न छा गए। मसलन औरंगज़ेब ने मौसीकी से खुद भले परहेज किया, लेकिन उनके कुछ बेटों ने मौसीकीकारों और मौसीकी के हुनर पर रोशनी डालने वाली किताबों के लिए दीवाना होकर इमदाद दी। कैथरीन स्कॉफिल्ड ने इस ओर इशारा करते हुए लिखा है कि औरंगज़ेब की हुकूमत के दौरान लिखने वालों ने इतनी तादाद में मौसीकी की तहरीरें लिखीं जितनी उससे पहले के 500 सालों के हिंदुस्तानी तारीख में कभी नहीं लिखी गई थीं। चित्रकारी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तफसीली और ब्यौरावार सबूत इस बात को मजबूती देते हैं कि 1660 के बाद औरंगज़ेब ने चित्रकारों को दी जाने वाली रकम रोक दी थी, लेकिन इसके बावजूद औरंगज़ेब के बुढ़ापे के कई सारे चित्र अब भी मौजूद हैं। इस दौर में फ़ारसी शायरी खूब फली फूली। औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुन्निसा खुद एक आला दर्जे की शायरा थीं। वो मख्फी और तखल्लुस से जुड़ी नज़में लिखती थीं। शाइस्ता खान, जो कि औरंगज़ेब के मामा थे, जिनका कैरेक्टर शायद आपने बॉलीवुड की एक मूवी में देखा होगा जिसमें शिवाजी ने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थीं। वह खुद भी संस्कृत भाषा के माहिर थे। वह संस्कृत विद्वानों और संस्कृत संबंधी परियोजनाओं को संरक्षण देने के लिए मशहूर थे। जिस समय वह बंगाल के सूबेदार थे, उस समय महाभारत के फ़ारसी तर्जुमे जिसका अनुवाद अकबर के ज़माने में हुआ था, उसकी विषय सूची बनाने का काम वसंत राय को सौंपा था। जहाँ तक खुद संस्कृत लिखने वालों का ताल्लुक़ है, अपनी तरफ से वह औरंगज़ेब का जिक्र करना कभी नहीं भूले। मिसाल के तौर पर गुजरिश्तकम, जिसका मतलब है गुजराती स्त्रियों का आमोद प्रमोद, के रचनाकार देवदत्त ने औरंगज़ेब और उनके बेटे आज़म शाह का जिक्र शुरुआती पंक्तियों में किया है। 1669 के बाद औरंगज़ेब के दरबार में एक अलग तरह का भाव पैदा हो गया। कुछ चीज़ों का उत्साह कहीं खो गया। फिर भी शाहजहां के दौर की कुछ मुगलिया रवायतें अपने जारी रहने का इशारा देती रहीं, जिनमें दरबार के रस्मी कायदे और शाही सरपरस्ती भी शामिल है। यूरोपीय यात्रियों ने औरंगज़ेब के दरबार की उन लंबी चौड़ी रस्मों और कायदों को बयां किया है, जिन पर बड़ी सख्ती से अमल होता था। बादशाह एक बुलंद तख्त पर बैठा करते थे और जब दिल्ली में होते तो तख्ते ताऊस पर, जिसमें इतने हीरे जवाहरात लगे हुए थे कि दरबारी गिन भी नहीं सकते थे। बादशाह रेशमी पैरहन में सजे होते थे। सर पर सोने के तारों से बुनी पगड़ी हुआ करती थी, जिसमें बेहिसाब मोती और जवाहरात जड़े हुए थे। दरबारी अमीर अपने ओहदे और दर्जे के मुताबिक क्रम से खड़े होते थे।
और सामने मौजूद उस जगमगाती रौनक को ताका करते थे। जमीन पर शानदार कालीन बिछे होते और दीवारों पर बुने हुए कपड़े ढके जाते। नौबत यानी शाही गायकों की मंडलियों पर औरंगजेब ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, सो वह तैयार खड़ी रहती थी। इस शानो शौकत के आलम में औरंगजेब तोहफे बांटा करते और हुकूमत के कामों में लगे अमीरों और बुलाए गए मेहमानों के तोहफे कबूल भी किया करते थे। 1670 का दौर बड़े पैमाने पर चालू हुए शाही मंसूबों का गवाह बना। ये मंसूबे मुगलिया रवायतों की लीक पर चलते हुए भी औरंगजेब के मिजाज और नज़रिए से मेल खाते थे। मसलन इस दौर में उलमाए किराम ने पूरे 8 सालों की मेहनत लगाकर फतवाए आलमगीरी नाम से एक बहुत बड़ा इल्मी मंसूबा अंजाम दिया। 1675 में मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा हनफी फ़िरके के मुताबिक ढाला गया। इस काम के दौरान औरंगजेब न केवल लिखे जा रहे मसौदे को ज़ोर से पढ़वा कर सुनते, बल्कि ज़रूरत होने पर उन्हें दुरुस्त करने की सलाह भी दिया करते थे। जब यह काम मुकम्मल हो गया तो हुकूमत भर के काजी इसका सहारा लेने लगे। मूल रूप से अरबी में लिखी गई इस किताब का फ़ौरन फ़ारसी में तर्जुमा भी करवाया गया। इस किताब का मजहबी पहलू शायद बादशाह की परसई फितरत यानी अकीदत और नेकी की झलक देता है। अपने पुरखों की तरह औरंगजेब ने भी एक बहुत बड़े शाही कुतुब खाने के लिए मदद दी। इतना ही नहीं, अपने हाथ से लिखी किताबों की हिफाजत के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए भी खर्च किए थे। दिलराज बानो बेगम के लिए बनवाए गए गरीब आदमी के ताजमहल यानी बीबी के मकबरे के उलट 1671 में औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई और इस बार औरंगजेब ने शाहजहां के हुनर को छुआ। औरंगजेब की यह सबसे उम्दा मस्जिद नक्काशी, जड़ाऊ संगमरमर, नोकदार मेहराब के अलावा खूबसूरती के और भी बहुत सारे पहलुओं को समेटे हुए है। जिस वक्त बादशाही मस्जिद बनी थी उस वक्त से लेकर 1986 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जदीद सियाहों को इसकी तौसी आज भी मुतासिर करती है। इसमें एक साथ 1 लाख लोग समा सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में सिख साम्राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह ने इसे हथियारों की गोदाम की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब यह फिर से एक मस्जिद के रूप में लोगों की निगाहों को अपनी खूबसूरती और मुगलों की यादों से भर देती है। औरंगजेब आलमगीर ने 1679 में दिल्ली से कूच किया और फिर कभी उत्तरी हिंदुस्तान नहीं लौटे। 1681 से वह लगातार दक्कन के चक्कर लगाते रहे, अपनी थकान को भुलाकर जंगी मोर्चा बांधते हुए, ढावे बोलते हुए सुर्ख तंबुओं के भीतर जिंदगी काटते रहे। औरंगजेब के पुरखे भी मुगलिया शान की अलामत के तौर पर जंग के दौरान सुर्ख खेमों में रहा करते थे। औरंगजेब ने भी इस रिवायत को बनाए रखा, मानो मुगलिया जिंदगी अपनी खाना बदोशी की ओर लौट गई थी। लेकिन यहाँ भी औरंगजेब की अपनी पसंद मुगल रिवायतों के निशानात के साथ उनके अपने सूफी जायके पर हावी थी। मिसाल के तौर पर अपनी हुकूमत की आधी सदी भर वह रोज़ रस्मी दरबार लगाते रहे, किसी रोज़ तो दिन में 2 बार भी। उन्हें इंसाफ देने में फ़ख्र महसूस होता था, इसलिए कई मर्तबा अर्जियों और दरख्वास्तों के जवाब वह खुद ही लिखा करते थे। अपने पुरखों की तरह औरंगजेब आलमगीर ने भी 18वीं सदी तक ज्योतिषियों के साथ गहरे रिश्ते बनाए रखे। 1690 में हिंदुस्तान आए एक इटालियन यात्री गैमेली करेरी ने लिखा है कि बादशाह ज्योतिषियों की सलाह के बगैर किसी काम का बीड़ा नहीं उठाते थे। औरंगजेब के इंतकाल होने से कुछ ही दिन पहले एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि बादशाह का बुखार 1 हाथी और 1 हीरा दान करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदू और फारसी दोनों रिवायतों का गलत तरीके से घाल मेल करके दी गई इस सलाह को औरंगजेब ने सिरे से खारिज कर दिया और इसके बजाय एक दूसरा काम किया। उन्होंने 4000 रुपये गरीबों में बंटवा दिए। आम तौर पर कहा जाए तो औरंगजेब की हुकूमत के आखिरी बरस उन हिंदू विचारों, ग्रंथों और परंपराओं से खाली नहीं थे जो बहुत पहले से मुगलों की हुकूमत और रिवायात का हिस्सा बने रहे। मिसाल के तौर पर 1690 के शुरुआती दिनों में चंद्रमन नाम के एक शायर ने नरगिस्तान नाम से रामायण का फारसी संस्करण तैयार किया और औरंगजेब को समर्पित किया। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए 1705 में अमर सिंह ने रामायण का फारसी में गद्य संस्करण तैयार किया और उसे औरंगजेब को समर्पित कर दिया।
इस किताब का नाम था अमर प्रकाश। 16वीं सदी के आखिर में अकबर ने पहली बार फारसी रामायण के लिए इमदाद दी थी। अगले 100 सालों के दौरान बहुत से कवियों ने फारसी रामायण के ढेरों संस्करण तैयार किए और उनमें से बहुतों ने अपनी रचनाएं बादशाह के नाम समर्पित कर दीं। हुकूमत के आखिरी दिनों में औरंगजेब भी मुगलिया तहजीबी रिवायात से दूर न रह सके। अपने पुरखों और हिंदू पुराकथा के नायक राम के बीच के रिश्तों को उन्होंने भी नहीं तोड़ा। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अगले एपिसोड में हम औरंगजेब को हिंदुस्तान का मुंतजिम और एक लंबी चौड़ी सरहदों के निगरान के तौर पर देखने और परखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री आवर और राष्ट्र गुफ्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें व फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। शुक्रिया।